हरिओम। आज इस शुभ दिवस पर चिन्मया मिशन के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी आज की प्रस्तुति मेरी मीरा नाट्य श्रृंखला की चौथी कड़ी है, जो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव को दर्शाती है। मीराबाई का प्राकट्य प्रभाव अत्यंत विलक्षण था और आज भी हम उन्हें अपने जीवन का एक अंग मानते हैं। हमारी यही मान्यता हमारी प्रस्तुति के शीर्षक की सार्थकता को उजागर करती है। मीरा की भक्ति, प्रेम और चरित्र की सरलता हर हृदय को स्पर्श करती है। नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 20 मिनट की है। हमारे आज के सभी स्पॉन्सर्स का हम आभार व्यक्त करते हैं। आज के ज्वेलरी पार्टनर्स नेमीचंद बामलवा एंड सन्स, wardrobe partners Ekru and Darshika. I would also like to bring to your notice that the mission is coordinating Vedant study classes. For further information regarding these classes, please contact Mr. Vikram Murarka at the desk outside. आइए हम सब गणेश जी का आवाहन करें और गुरुदेव चिन्मयानंद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आरंभ करें। ब्रह्मचारी जी और कालरा जी से अनुरोध है कि वे मंच पे आकर दीप प्रज्वलित करें। Hari Om to everyone else. I expect Hari Om in return. Thank you so much. So it's our privilege that under the umbrella of Chinmaya Mission we have come together. Chinmaya Mission is one of the biggest organizations in the whole world. What other organizations do, we also do, but our expertization is in Shastra, knowledge. India's second international school belongs to Chinmaya Mission. In a very turbulent situation we are passing through, and by the grace of God and Gurudev, we know that this situation will pass by. But Chinmaya Mission is there all the time in the society to cater the exact knowledge how to deal with this situation, how to deal with our emotions. If we cut the root of a tree and we water in the leaves and flowers, the tree will not survive. Our root is our Samskriti, our culture. If we don't know about our culture, it's very difficult to survive in a proper way. Chinmaya Mission is expert in the whole world. We are having a center in Kolkata, it is 180B Sarad Bose Road. Our youth wing, nowadays the youth are very, very talented. They get 98%, 99% number, yet they don't know what to do. They don't know the aim of their life and they are getting scattered. It's my humble request to all of you. At the time of going back in the desk, you will get all the information. In the whole world, we are the research people. We cater knowledge how to deal with all the emotions and how to make a great life, great nation, great country. Hari Om Tat Sat.
Can I please request Kalra ji to come and say a few words? Hari Om. We'll do the Shanti mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. It is the grace of Pujya Gurudev that I am standing in front of you, and we are going to present before you a lovely program, Meri Meera. This program has been organized by the Chinmay Study Group, and I have been instructed to become very brief, so I put myself on time, Now, this class has been there for last over 10 years, and we have been conducting the classes as per the study group, and earlier we had done performances and everybody enjoyed, and the result is that we see you all back here. This is a very, very noble event, and here don't look at there is a yagna spirit you will see here. Don't look at the age, color, caste, creed, or the size of the participants. See the zeal and enthusiasm which they show, and each one of us has got that potential. How to exploit that? Then you have to come to Chinmay Mission, join the study group. I want to tell you now very briefly what is the place of Meri Meera in our spiritual journey. A journey cannot be started without a vehicle. And the vehicle with which we go about in this journey is our mind. So there are three aspects. We have to master the mind, we have to transcend the mind, and then become one with our own self. The mastering of the mind is done through bhakti and karma yoga. The transcendence preparation is done through Gyan Yoga. And Gyan Yoga involves three things. That is Gyan Abhyas, which is Shravan, Manan, and Nididhyasan. After the preparation is done, then comes, this is done through Gyan Yoga. And the third part is the Parabhakti. And that is what Meri Meera is going to show you. Time is up. I'll take 20 seconds more. Okay. Okay, I got 1 minute extension. Thank you. See, they say, as you think, so you become. So today, and all through, since we have been seeing these flyers coming into our mails about Meri Meera, so we have been thinking about Meri Meera. Let us get the whole picture and have the grace of the Lord so that our bhakti increases to the level of the bhakti of Meri Meera. One last word of caution is that if you don't follow the sequence is first karam or bhakti yoga, then comes the Gyan yoga, and then comes the Parabhakti. That is, if you want to jump into Gyan yoga without going into the Karma yoga, you are not going to be successful. So, with these words, I don't want to stand between you and the performers. So, thank you very much. Hari Om. Dear Abhaya, we are here to enact the life of a woman born in this very country, known and respected for her piety and her faith in her Lord. But we are so ashamed to be part of this society which has allowed such a heinous crime to be committed upon you. Today, we stand here with the same faith, with solidarity and support to assure you that we are with you in full solidarity
and support till justice is prevailed and all the perpetrators of this crime are exposed and punished. May your soul get embalmed. जन्मों से कटते कर्मों की पूंजी को संस्कारों के डोर से बंधे देखा है। पशु पक्षी देव नर नारी हर रूप का आगमन होते और फिर शेष होते देखा है। शुभ संयोग जब सही समय पर गृहों में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण एक पुण्य आत्मा का उदय होता है इस धरती पर। आइए चलते हैं मेलता के राव दूधा जी के महल की ओर। उनकी पुत्र वधू जन्म देने जा रही है, जिसके आगमन से होगा हर्षित सारा वातावरण। अब देखना ये है इस फुलवारी में क्या खिलता है, इस वंश की वृद्धि कैसे होती है। सुनिए, किलकारियां सुनिए। लक्ष्मी घर आई है, बाई सा बधाई है, बधाई हो हुकुम, बधाई हो। धन्य भाग हमारे, वर्षों से संतों की सेवा का फल आज इस राजपूत परिवार को मिला है। मेरी पौत्री के भाग्य से ऐसी गूंज उठेगी जो वर्षों तक सुनाई देगी। कौन जी, नगर में घोषणा करा दीजिए कि राजकोष खोल दिए गए हैं और 15 दिनों तक पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव मनाया जाए। जी हाँ। आंगन सजियो फूलारो
बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चूनर ओढ़ी सा घेरदार घाघरो गुलाबी चूनर ओढ़ी सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा धन धन भाग अंगड़िए जाग्या आन बान भरी बाई सा धन धन भाग अंगड़िए जाग्या आन बान भरी बाई सा जो दीपक दूर करे अंधियारो कुल रो जानो बाई सा कुल रो जानो बाई सा लाड लडावे मायड़ और बाबो सन जीव सु प्यारी सा लाड लडावे मायड़ और बाबो सन जीव सु प्यारी सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चूनर ओढ़ी सा घेरदार घाघरो गुलाबी चूनर ओढ़ी सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा महल में अनेक संत आते और कन्या के रूप की प्रशंसा कर आशीर्वाद से सुसज्जित करते। समय की धारा अपनी गति से बहती रहती है और आखिर वह दिन आ ही गया जब समस्त परिवार बाईसा के नामकरण और अन्नप्राशन के लिए एकत्रित हो गए। हमारी कई वर्षों के कई जन्मों के पुण्य हैं जो आप जैसी कुलवधू इस महल में पधारी हैं, जिसकी कोख से ऐसी दिव्य कन्या ने जन्म लिया है। बहू, आपने पूरे 9 महीने भागवत कथा सुनी और समझी भी है। संत कहते हैं गर्भावस्था में ही बच्चे में संस्कारों के बीजारोपण हो जाते हैं। बड़ी तो होने दीजिए हुकुम, जब इसके पांव महल में पड़ेंगे और इसकी पायल छमछम करेगी, तब कण कण में धर्म की गूंज उठेगी और रोम रोम में भक्ति की ऊर्जा जगेगी। इसके मुख पर सूर्य का तेज है और इसकी मुस्कान में मंजुल सी मधुरता। हम इसे मिहिरा बुलाएंगे और प्यार से मीरा, मेरी मीरा। हुकुम साहब, हम अपनी मीरा का पालन पोषण इस तरह करेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। हुकुम, आप तो कितना संतों का संग करते हैं, जरा उनसे पूछिएगा मेरी मीरा के जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख तो नहीं, वो सुखी तो रहेगी ना? चिंता न करें आप, चिंता चित्त को अशांत कर देती है। सुख, दुख, कष्ट ये सब सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इनसे न भागना न घबराना, ये आते जाते रहते हैं। हमारी मीरा पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये तो हमारी महल की राजकुमारी है। ललिता बाई, खीर का कटोरा तो लाओ, अपनी लाडेसर को खीर तो चटाओ।
लेकर आओ जिसमें तुलसी दल हो। जी हुकुम। मुझे दीजिए। आज से प्रतिदिन मीराबाई सा को चार भुजानाथ जी के दर्शन कराए जाएं और इनका हर आहार ठाकुर जी को भोग लगाकर तुलसी दल के साथ ही दिया जाए। ये हमारी कुल देवी का दिव्य प्रसाद है और इनकी देख रेख वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक देवी की होती है। इसे चमत्कार कहें या संयोग ये आप पर छोड़ते हैं, पर चार भुजानाथ के दर्शन से उस नन्ही मीरा को जैसे कोई उसके पूर्व जन्म के इष्ट दिख गए थे। कोई नाता बन गया था उन नेत्रों से। मीरा, मीरा कहाँ हो बेटी? क्या हुआ दादी साहब? अरे बेटी, निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में जाना है, चलिए। दादू साहब, क्या पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब में एक ही भगवान वास करते हैं? और अगर भगवान सब जगह है तो हम बार बार मंदिर क्यों जाते हैं? वो इसलिए बेटी, वहाँ भगवान की मूर्ति होती है ना। पर मुझे मंदिर में सिर्फ कृष्ण की मूर्ति क्यों अच्छी लगती है? फिर तो जो भगवान अच्छे लगते हैं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। आइए। बेटी, तुमने क्या देखा? इस कृष्ण की मूर्त को या मिलने वाले प्रसाद को? मैंने तो हजारों सूरज की रोशनी देखी। अच्छा महाराज, महल के मंदिर की मूर्ति तो कितनी विशाल है, परंतु ये मूर्ति तो बहुत छोटी है ना? ये मूर्ति तो भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, और प्रतीक छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है। कैसे एकटक देख रहे हैं मुझे? आप प्रसाद में ये मूर्ति दे देंगे मुझे, मैं इनकी पूजा करूंगी। ये तो मेरे भगवान है, मेरी साधना के साथ इन्हें नहीं दे सकता बेटी, तू प्रसाद दे। संभालो इन्हें, कल से ये तुम्हारे पास जाने को व्याकुल है। सच महाराज, पर आप इन्हें मुझे दे रहे हैं, तो फिर आप किसकी पूजा करेंगे? बस यूँ समझ ले बेटी, तेरे नेत्रों की पुकार और उनका प्रभाव मेरे मंत्रों से कहीं श्रेष्ठ है। मेरी पुकार? मैंने तो सिर्फ हाथ से इशारा किया था। जा बेटी, इन्हें ले जा और खूब मन लगाकर सेवा कर।
इस बच्ची के माध्यम से स्वप्न में ही सही एक अनोखा क्षण, एक अमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। अपनी साधना को और पुष्ट करने के लिए मुझ में एक नया उत्साह जागृत हो गया। संत थे, बच्ची के लिए कृतज्ञता आई और अपने अद्भुत स्वप्न की बात अपने तक ही रखी। पर समय सचेत रहता है, सुन सकता है, समझ जाता है कि कैसे उसी रात प्रभु ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और कहा, जाने दो मुझे उसके पास, अपने भक्ति भाव को नया रूप दो। इधर मीरा आसमान में उड़ रही थी, धरती पर पांव जो नहीं पड़ रहे थे। इस मूरत ने सब संबंधों को एक तरफ कर दिया और मीरा को एक नई डोर से अपने से बांध दिया। अब मीरा अपनी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच गाने, पहनना ओढ़ना सब इन पर वार दिया। जन्मदिन मनाएंगे, नए कपड़े, गहने, बांसुरी सब पहनाऊंगी। मासा आप तरह तरह के पकवान बना लीजिएगा और आप तायसा पूरे महल को सजा दीजिएगा। इस मीरा को कैसे पता चला कि 8 दिन बाद जन्माष्टमी है? चलो इसी बहाने महल में एक और उत्सव मनाया जाएगा। मैं उत्सव की तैयारियां शुरू करवाती हूँ। मीरा बेटी, दासिया कह रही थी तूने सवेरे से कुछ खाया नहीं, तुझे भूख नहीं लगती क्या? मासा देखिए कैसे नटखट नजर से देख रहे हैं, जैसे अभी अभी माखन ऋषि चुराए हो। अच्छा अच्छा, तू भी तो कुछ खा ले, मैं तेरे लिए भोजन लगाती हूँ, तू जल्दी से आ जाना, ठीक है? मीरा, मीरा बेटी। दादू साहब, दादू साहब अंदर आइए, मेरे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए ना। अरे ये ठाकुर जी, ये तो वही है ना? आपके पास कहाँ से आ गए? महात्मा जी ने खुद मुझे दिए दादू साहब, पर उन्होंने कोई नाम ही नहीं बताया। आप ही इनका नाम बताइए। ये तो अनेक नामों से जाने जाते हैं, कृष्ण, गोपाल, माधव, मुरली मनोहर, गिरधर। बस बस, गिरधर ये नाम अच्छा है, इसका अर्थ क्या है? ये नाम इन्हें अपनी एक अनोखी लीला के कारण मिला। एक बार इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए इन्होंने उनकी पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की पूजा आरंभ करवाई। बस इंद्र को क्रोध आ गया और 3 दिनों तक ब्रज पर भारी वर्षा करवा दी। पशु पक्षी नर नारी सब भयभीत हो गए। तब ये लीलाधारी सब वासियों को लेकर गिर यानी पर्वत के पास गए और जल्दी बताइए दादू साहब, उठा लिया पर्वत को? बाईं हाथ की कनिष्ठ उंगली से एक तिनके की भांति उठा लिया और तब से इनका नाम गिरधर पड़ गया। गिरधर, वाह, मैंने इसी नाम से पुकारूंगी। दादू साहब, आप मेरे गिरधर गोपाल के लिए चांदी का झूला, भोग के लिए सोने के बर्तन, शयन के लिए मखमल की गद्दी सब मंगवा दो, ठीक है? अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ।
अरे मीरा को कैसे पता चला? इस मीरा को देखो कैसे अन्नदाता हुकुम को इधर उधर बजाए है। तुम ही कहो, मीरा को छोड़कर और किसी का साहस है? अरे औरों का छोड़ो, उनके अपने बेटे ही नहीं अपनी बात बोलवाते, किसी और से कहलवाते हैं। यही एक ऐसी लाडली पूत है जिसकी हर बात उन्हें मान्य है। चलो मीरा बेटी, चुप चुप क्यों बेटी? क्या मंगवा रही है अपने दादू साहब से? अपने बापू साहब को भी तो सेवा का अवसर दीजिए मेरी लाडो। आप भूषण मंगवा दीजिए, खूब सारे। और रेशम के वास्ते अपने गिरधर को प्रतिदिन बदल बदल के पहनाना, कभी लाल, कभी पीला और कभी हरा। जन्माष्टमी से पहले मैं तेरे गिरधर के लिए सारे आभूषण मंगा दूंगा। लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारी की पैजनिया बाजे रे। अरे छुम 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 छाना ना 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 ना, छुम 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 छाना ना 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 ना। लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारी की पैजनिया बाजे रे। यशोमती सुत को चलन सिखावे, यशोमती सुत को चलन सिखावे। उंगली पकड़ बिच भैया, लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारी की पैजनिया बाजे रे। अंग अंग सब भूषण साजे, अंग अंग सब भूषण साजे। मंद मंद मुस्कैया, लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारी की पैजनिया बाजे रे। अरे छुम 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 छाना ना 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 ना, छुम 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 छाना ना 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 ना। सबने बच्ची की बाल लीला को कृष्ण लीला कह उत्सव का एक महल बना दिया। पर माँ, उसके हृदय में एक नया भय पनप रहा था। क्यों ये मीरा इतनी अलग है? क्यों इससे महल के सुख रास नहीं आते? क्यों? माँ को क्या मालूम था कि यही उसके लिए एक नया मार्ग बना देने वाली है, जिसके अंत में तो इंद्रधनुष है, पर रास्ते में कांटों का क्या? उस दिन तो वो उसकी बाल हट से पीछा छुड़वा रही थी। बाजे गाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? और ये हाथी पर कौन बैठा है? बेटी, ये बारात जा रही है और हाथी पर दूल्हा बैठा है। वो अपनी नगर सेठ की बेटी है ना, उससे ब्याह करने जा रहा है, उसे अपनी बींदनी बनाने। ये सबके बींद होते हैं, सब ब्याह करते हैं, मेरा भी बींद होगा। हाँ बेटी, सब लड़कियों के बींद होते हैं, तभी तो वो बींदनी कहलाती है। मेरा बींद कौन होगा? बताइए ना माँ। मैं कैसे जानूं तेरा बींद कौन होगा? बताइए ना। जा अपनी ताईसा से पूछ। मुझे कहीं नहीं जाना है, आप बताइए मेरा बींद कौन
हे भगवान, कैसे एक ही बात की रट लगाए हैं। अब मैं इसे क्या बताऊं? वो देख तेरा बिल। सच भाभू? हाँ हाँ सच। अच्छा सुन, मुझे बहुत से काम करने हैं और बहुत देर हो रही है, ठीक है? मीरा को जैसे प्रेम का नया एहसास मिल गया हो। उसमें गीली में पहली बारिश की शीतलता थी, गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और जीने की एक नई उमंग। दूधाजी बूढ़े हो चले थे, रतन सिंह जी राजपाट में व्यस्त रहते, मीरा भी बड़ी हो चली थी। ताइसा और माँ की सीख सुनकर समेट कर रखती। मीरा प्रतिदिन दूधाजी के कक्ष जाती, उन्हें औषधि दे भजन सुनाती। पर आज मीरा कक्ष में एक शिकायत लेकर आई थी। उसके कानों में विवाह, मेवाड़, भोजराज ये सब शब्द गूंज रहे थे। क्या हुआ? आज मेरी मीरा की आभा कुछ बुझी हुई क्यों है? अपने वर से कोई कहा सुनी हो गई? वर से नहीं दादू साहब, आपकी कुलवधू से। पहले तो मुझे बताया कि मेरे वर मेरे गिरधर गोपाल हैं और अब दिन रात बापू साहब और ताइसा से मेरे विवाह की चर्चा करती है। बीज तो एक ही होता है ना? सांची बोली? तूने मासा से पूछा नहीं? मासा और ताइसा एक तरफ हो जाती है, कहती हैं मुझे बहलाने के लिए कहा था। भला पीतल और मिट्टी के मूरत किसी के वर होते हैं क्या? मन जिसे पति मान ले, वो पति संसार के पति से ऊंचा होता है। और तूने तो साफ और सरल मन से गिरधर को अपना पति माना है। वही तो दादू सा, इनको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? तू चिंता मत कर, मैं सबसे कह दूंगा। मेरे जीते जी मेरी कृष्णमयी मीरा का विवाह उसकी स्वीकृति के बिना नहीं होगा। खुश? समय अपने साथ मीरा को प्रश्नों के सागर में छोड़ देता। उसके अंतर मन में उठ रही लहरें तीव्र होती जाती। उसे अभी गीता के श्लोक सीखने थे, सांसों से बन रही ध्वनि की सरगम को पहचानना था, अनंत तक जाने का मार्ग पहचानना था। इच्छा थी गुरु के समक्ष नतमस्तक होने की। प्रकृति ने संकेत दिया और उस रात मीरा को स्वप्नों में ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसे कुछ बोल रहा है। समय आ गया है कि तुम्हारी शिक्षा को नया मोड़ दे। कल गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जिस संत को तुम सबसे पहले प्रणाम करोगी, वही तुम्हारे आगे का मार्गदर्शन करेंगे। महाराज, आज्ञा दीजिए। विजयी भव। दीजिए। कहाँ है थारी लाडेसर? अपने गिरधर का चरणामृत तो दे तो मैं जाऊं। लाडेसर तो वो आपकी और भाभी सा की है, मेरी तो वो सुनती कहाँ है। उसे
आपने और भाभी सा ने एकदम बिगाड़ दिया है। घर बार का काम काज मैं उसे बताती रहती हूँ ना, इसलिए उसे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। अब मैं देखती हूँ वो कहाँ है। अरे हाँ, संत रैदास जी आ रहे हैं। आज आपको उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। आइए आइए महाराज, आज अचानक। हाँ, मुझे भी अपने ऊपर बहुत आश्चर्य हो रहा है। पांव तो बढ़ाए थे दक्षिण की ओर, मगर पता नहीं कैसे मुड़ गए आपके महल की ओर। कुंवर जी युद्ध पर जा रहे हैं? जी हाँ महाराज, धन्य भाग हमारे जो आपसे भी इस समय भेंट हो गई। आशीर्वाद दे। चिरायु भव, विजयी भव। प्रणाम महाराज। सदा सुखी रहो। क्या आप मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार कर दीक्षा देंगे? बेटी, पहले यह तो बता, शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? गुरु की निस्वार्थ भाव से दी हुई शिक्षा दान के समान होती है, इसलिए दीक्षा बन जाती है। इसे हर क्षण अपने साथ रखना। माता का हो या पिता का, साथ सखा का हो या सखी का, एक न एक दिन छूट ही जाता है, पर स्वर और संगीत का साथ कभी नहीं छूटता। यह तो आत्मा की शुद्धि का काम करता है और पवित्र आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है। मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूँ, मेरी पूजा का समय हो रहा है। प्रणाम महाराज। प्रभु चरणों में दिनों दिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। पूर्ण भव। आप चलिए महाराज, मैं अभी आपके कक्ष में पूजा सामग्री भिजवा देता हूँ। अवश्य। आइए। बाप दादा क्या कम थे इसे ज्ञानी बनाने के लिए? एक गुरु और आ गए। ये सब पीहर में चलता है, ससुराल में कौन करने देगा ये सब? कब समझ आएगी इन सबको? मैं तो परेशान हो गई। संत रायदास के जाने के कुछ दिन पश्चात दूधा जी बहुत अस्वस्थ रहने लग गए और शीघ्र ही मीरा के भक्ति संस्कारों का पोषण करने वाले उसके सबसे बड़े सहायक और अवलंब बाबू साहब चल बसे। परिस्थितियां बदल गई और मीरा के जीवन में एक नए मार्ग ने दस्तक देना शुरू किया। प्रणाम भाभी साहब, आपने मुझे बुलाया? और मेरी मीरा बेटी कैसी है? कैसी होगी? अपने गिरधर के समक्ष बैठी मुस्कुरा रही होगी या फिर अपने कक्ष में ध्यान मग्न बैठी होगी। मुझे तो आपकी लाडो बावरी होती दिख रही है। बावरी है तीनों लोक के स्वामी के लिए। आप सबको इसके विवाह की कोई चिंता है भी? इसकी उम्र की लड़कियां 2-2, 3-3 बार ससुराल हो आईं। देवर साहब, मेरा भतीजा भोजराज बहुत ही सुंदर, सुशील और सभ्य है। हाँ भाभी साहब, मुझे याद है। शूरवीर और संस्कारों वाला है। देखने में एकदम संत की प्रवृत्ति लगती है। हमने तय कर लिया है, हम अपनी मीरा का ब्याह भोजराज से ही करेंगे। हमारी मीरा लाखों में एक है। उनके घर जाएगी, उनके बड़े भाग्य कि वो उनके घर बहू बनकर जाएगी। सच भाभी साहब? ऐसा हुआ तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इतना संपन्न घर, इतना वैभव,
पर भाभी साहब, क्या वे मीरा के बारे में? तू चिंता मत कर, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। आपका हुक्म सर आंखों पर। इस बार होली के त्योहार पर उनके घर न्योता भेज देंगे। दोनों परिवार भी मिल लेंगे और भोजराज मीरा से भी मिल लेंगे। जाओ, आप मीरा को नीले पीले हरे लहंगे पहनाओ, सजना संवरना सिखाओ। बहुत हो गया ये बचपन का खेल, ये गिरधर से प्रेम, उससे विवाह। जी भाभी साहब, कुल देवी से यही प्रार्थना है कि मीरा को एक समझदार साथी मिले जो उसकी भावनाओं का आदर करे, उसके सम्मान की रक्षा करे और इच्छाओं का कदर करे। मीरा, मीरा बेटी, आज मैं तुझे तैयार करती हूँ। आज होली है और कुछ खास अतिथि आने वाले हैं। खास क्यों? क्योंकि आज तेरा बीन। बीन? हम होली पर वृंदावन जा रहे हैं। अरे नहीं, आज कुंवर भोजराज जी आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। बस तेरे गिरधर थोड़ा साथ दे दे तो मेरे बरसों का स्वप्न पूरा होता दिख रहा है। तेरे जीवन में नए रंग, नई उमंग आती दिख रही है। अबीर, गुलाल। माँ, मुझे ये ब्याह नहीं करना, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे घबराना कैसा बेटी, एक बार है तो दूसरा क्यों? क्योंकि इस धरती पर भी तुझे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। हम हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकते। बस यूँ समझ ले, तेरे गिरधर तेरे लिए एक नया मार्ग बना रहे हैं। विवाह करना एक कन्या के लिए अनिवार्य क्यों हो जाता है? भरोसा रख मेरी लाडो, तेरे गिरधर कोई संत को ही तेरा जीवन साथी बनाएंगे। माँ, तुम इसे रोक नहीं सकती? वर्षों के पुण्य और तपस्या से किसी माँ बाप को कन्यादान करने का अवसर मिलता है। हमें भी इस सौभाग्य का अवसर दे बेटी। ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। बस तू एक बार भोजराज जी से मिल तो ले। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
क्षमा गणी। घड़ी क्षमा। आपके बारे में वर्षों से जितना सुना था कम ही सुना था। आपके रूप और गुण की चर्चा तो विवाह तक है। हमारे परिवार वालों ने हमारा विवाह तय किया है। परंतु मेरा विवाह तो हो चुका है मेरे गिरधर गोपाल से। जी मुझे पता है। एक बात कहूँ, आपके मुख से किसी ज्ञानी की आभा झलकती है और बातों से एक बच्चे की सादगी। कहते हैं कि इन दोनों के समन्वय से नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। मीरा, हमारे अपने माता पिता के सुख के प्रति भी तो हमारा दायित्व है। उनका मान तो हमें रखना ही चाहिए। और ये कैसे होगा? अगर ईश्वर ने आपसे विवाह के लिए मुझे निमित्त बनाया तो मैं केवल दुनिया की नज़र में पति बनूंगा। राजपूत हूँ, वचन देता हूँ। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका स्पर्श नहीं करूँगा। भक्ति के जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसमें सखा बनकर साथ चलूँगा। एक सखा की भांति? जी हाँ, आपके गिरधर गोपाल आपके स्वामी और आप मेरी स्वामी। ये हीरे की कंठी साथ लाया हूँ। अगर यह संबंध स्वीकार हो और आप मुझे योग्य समझें तो प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। हे मुरली मनोहर, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मैं कृतार्थ हो गया। प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि इस सेवक पर सदैव बनाए रखना और मुझे अपने वचन निभाने का सामर्थ्य देना। प्रणाम। यहाँ प्रेम के एक रूप में अनेक रूप देखने को मिले। राणा ने अपने प्रेम का बलिदान, मीरा के प्रेम का मान और अपने कुल की आन सबको बचाया भी और निभाया भी। समय ने मीरा के रंग, रूप और गुण को और निखारा और आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी हर माता पिता को वर्षों से प्रतीक्षा रहती है। पर विडंबना तो देखिए, जब डोली सजकर तैयार है तो वे 2 पल और चाहते हैं। 2 पल बेटी के साथ रहना चाहते हैं। आंखों में आंसू होते हैं और जग के सामने मुस्कुराते हैं। देखिए कुंवर जी, हमारी मीरा के भाग्य कैसे खुले हैं। जब से उसका विवाह संपन्न हुआ है तब से मेवाड़ से अपार गहने और कपड़ों के थाल आते हैं। इतने सुंदर, इतने आकर्षक, इतने उत्तम हीरे, पन्ने, लहंगे, रंगीन चूनर, पायल। बेटी मीरा, तनिक मुड़कर तो देख। मीरा, मीरा बेटी, तू कुछ सुन भी रही है क्या? हाँ माँ, पायल में मोती और कानों में माणिक लाल, बाजूबंद में नवरत्न और गले में पन्नों का हार, बोरले में झालर और कंगन में सोने का तार और लहंगे
तूने तो पलटकर देखा भी नहीं, फिर तुझे कैसे पता चला? हमारे लिए तो भोजराज वो कीमती हीरा है जो भगवान ने हमारी झोली में डाल दिया। सदा सुखी रहे बेटी, खुश रहे। उसे चिंता सताए, पर जब बेटी ससुराल चली जाए उसकी याद सताए। उसके बचपन के मानो हर पल उसके सामने आ जाए। क्यों इतनी उतावली हो रही थी कि कब ये दिन आए? माँ तो माँ होती है। तो बेटी होती है, उसकी सदा यही विडंबना रही। जिस घर पली बढ़ी वह घर हुआ पराया, और जिस घर आई ब्याही वह घर अपना बनाया। मेरी मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी बढ़ी। ससुर पिता बन गए, पति सखा, सास ननद देवर थे सब अपने, पर समझ नहीं पाए। बहू, ये हमारी कुलदेवी हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए। अपने वैवाहिक जीवन के लिए इनसे आशीर्वाद लीजिए। क्या भाभी साहब, कुलदेवी का प्रसाद नहीं चाहिए क्या? हाँ? सुना था बहू का सारा समय पूजा अर्चना में व्यतीत होता है, फिर देवी का अनादर क्यों? बस भाभी, पीतल की मूरत के सामने बहुत नाच लिया। कुलदेवी को अपमानित मत करिए। बहू, ये हमारे घर की परंपरा है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कुलदेवी रुष्ट हो गई तो इस महल से अन्न धन सब चला जाएगा। कुलदेवी इस घर की हो या उस घर की, है तो सर्वव्यापी निराकार के ही अनेक रूपों का एक रूप। बहू के साथ उनके गिरधर आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। परंतु राणा जी, कुलदेवी का प्रकोप। पर बाबू साहब, कहीं बाढ़ ना आ जाए, अकाल भूकंप ना आ जाए। परंपरा का पालन या उल्लंघन रस्म और रीति से बंधा है। यह समय के साथ बदले भी जा सकते हैं। पर बाबू साहब, कुलवधू गंगा जल की भांति पवित्र मन से आती है। उन्हें इस तरह अपनाइए कि उन्हें ऐसा न लगे कि उनका पीहर छूट गया। कुंवर साहब, बहू को कक्ष में ले जाइए। आइए। मीरा, आप विश्राम कीजिए, आप निश्चिंत रहें। आज भी मेरे सिद्धांत मेरे साथ हैं। मुझे आपको दिया हुआ वचन याद है। राणा जी, आपकी बातों से तो मेरे मन का सारा बोझ उतर गया। प्रणाम। मीरा बड़ों के सामने चुप रही। माँ की सीख जो साथ लाई थी
पर साथ में यह ज्ञान भी लाई थी कि जब अनेक को एक में देखें तो कैसे किसी और देवी को नमन करें। मीरा अपने ससुराल में कर्म में निष्ठा और सेवा भक्ति भाव से करती रही। राणा जी रणभूमि में वीरता और शौर्य के झंडे गाड़ते। कभी जख्मी होकर मीरा के कक्ष में उसके मनमोहक भजन और शास्त्रार्थ सुनने आ जाते। उनके रिश्ते का नाम चाहे जो भी हो, पर संबंध विश्वास का था, साझेदारी का था, मित्रता का था। एक बार कितना मनमोहक भजन है जिसे प्रेम और भक्ति के सभी रस खोल दिए हैं। ये आपने लिखा है? राणा जी, आप कितने अस्वस्थ लग रहे हैं। ये जख्म, कुछ दिन महल में रहकर विश्राम करिए, स्वास्थ्य बनाइए। इन जख्मों पर मत जाइए, ये तो वीर पुरुषों की निशानी है। और अभी ये स्वास्थ्य बनाने का समय नहीं है, शत्रु को हराने का है। मन में एक जिज्ञासा है, अगर आज्ञा हो तो अवश्य पूछिए, ये आपका अधिकार है। मन उत्सुक है गिरधर गोपाल से आपके विवाह की बात जानने को। अगर आप ना बताना चाहें तो। राणा जी, मैं क्या बताऊं। उस रात मैं शयन कक्ष में विश्राम करने गई थी। बस 2 पल के लिए आंख लगी थी कि मानो चारों तरफ थाल ही थाल, रंग बिरंगे लहंगे, चूनर लाल, चमकते दमकते गहने, और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं मेरे प्राण प्रीतम से मेरा हथलेवा हो रहा है। वे क्या हुआ मीरा? प्रतिदिन प्रत्येक क्षण मुझे पुकारती हो, गिला शिकवा सब मूरत से बोलती हो, और आज जब मैं तुम्हारे समक्ष हूं तो इतनी शांत क्यों हूं?
मीरा, मीरा, मैंने आपकी आंखों में ऐसी चमक और आपके चेहरे पर ऐसा नूर पहले कभी नहीं देखा। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और प्रभावित हूँ। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपकी यह आभा बनी रहे और आप सदा सच्चिदानंद में रहें। एक निवेदन है, मानेंगे? जी कहिए। पहले वचन दीजिए। एक और वचन? वर्षों पहले दिया हुआ वचन तो आज तक निभा रहा हूँ। जी कहिए। मेरठम में तो साधु संत आते ही रहते थे, पर यहाँ सत्संग नहीं मिलता। यहाँ महल में तो संतों का प्रवेश निषेध है, पर सत्संग के बिना तो जीवन में मानो कोई रस ही नहीं रहता। ऐसा करता हूँ, कुंभ शाम के मंदिर के पास एक मंदिर बनवा देता हूँ। आप वही दर्शन के लिए पधारें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले सभी संत वहाँ पहुँचे। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी पा जाऊँगा। जी, जैसा आप उचित समझे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सेनापति ने संदेश भेजा है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। युद्ध की तैयारी की जाए। जी हुकुम। आदरणीय रहेंगे। बनने वाले मंदिर में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। मीरा को भजन और सत्संग की पूरी स्वतंत्रता होगी और ये मेरा आदेश है। और मीरा, अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप अपने पत्नी धर्म से मुक्त होंगी। राणा जी, आपने मुझे याद किया। देखिए, मैं आपके लिए अपने गिरधर का चरणामृत लाई हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं राणा जी? चाहे स्वर लड़खड़ाए पर अटकेंगे नहीं। मीरा, मैंने आप में सदा एक सखी से पहले एक गुरु की छवि देखी है। आपने अपने निश्चल प्रेम और निष्काम भक्ति से मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
एक बार मेरी आंखों में देखेंगी, क्या पता एक क्षण के लिए आपके गिरधर गोपाल में दर्शन हो जाए, बांसुरी की धुन सुन जाए। राणा जी, प्राण तो इस तन से निकलकर आगे की यात्रा पर चल पड़ते हैं, और तब तक जब तक परमात्मा से नहीं मिलते। वो देखिए आपके गिरधर गोपाल बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भोजराज अपनी यात्रा पर चले गए, पर मीरा को अभी कांटों भरी राह पर चलना बाकी था। उनके देहांत के बाद महल में हंगामा हो गया। भाभी को तो सफेद वस्त्र पहनने ही होंगे। अब किसके लिए करेंगे वो श्रृंगार? पोंछ दो उनके माथे का सिंदूर और सूनी कलाइयों में तुलसी माला बांध दो। और हाँ, जाके कह दो मासा से, ये मेरा आदेश है। जी हुकुम। सजाओ सितारे या भरो सिंदूर लाल, या रहने दो इनमें एक सूखी तुलसी माला। इस गले में पहनाओ पन्ना या कानों में माणिक लाल, या रहने दो इन दोनों को सादा और सूना। इन कलाइयों में पहनाओ चूड़ा या हथेलियों में मेहंदी लाल, या रहने दो इस हाथों में बस एक तारा। इस लहंगे में सजाओ गोटा पीला या उड़ाओ चूनर लाल, या रहने दो इन वस्त्रों को सादा और धूला। इस मिट्टी की काया को रखो इस हाल या उस हाल, बस रहने दो इसे गिरधर के लिए बेहाल, बस रहने दो इसे गिरधर के लिए बेहाल। मीरा सत्संग करने मंदिर चली जाती। वह बावरी क्या जानती थी कि उस पर अभी यातनाओं का कहर टूटने वाला है। मेवाड़ की राजगद्दी पर विक्रमादित्य विराजमान हो गया था। बजीरा बजाना, ये महल का मंदिर है, कोई रास्ते की धर्मशाला नहीं। साधु के वेश में ये लोग महल के बाहर ही अच्छे लगते हैं। इन्हीं तो भाभी सा ही बुलाती है। बस भाई साहब, अब और नहीं। आज से कोई भी पुरुष महल या मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उफ, इस औरत से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ करती हूँ विफल हो जाता है। पता नहीं क्या जादू टोना करती है ये डायन। महल के सारे लोगों को अपने वश में कर लिया है, और अब तो लोग उसे देवी मानने लगे हैं।
पुजारिन के वेश में सर्पिनी है। अब आगे क्या सोचा है आपने? अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। विक्रमादित्य का अत्याचार मीरा पर बढ़ता रहा। उसका भय सभी रिश्तों में विष की भांति फैल चुका था। वह कभी मीरा के शयन कक्ष में गर्म शीशे बिछवाता, तो कभी राह में सर्प डलवा देता, और कभी मंदिर से मूर्ति चोरी करने की साजिश करता। और महल के षड्यंत्र से अनजान यह पुजारी प्रतिदिन मंदिर में ध्यान मग्न रहती। नरसिंह अवतार में आए हैं प्रभु। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब। माँ साहब, माँ। मीरा, मैंने सब देखा। आपकी भक्ति ने एक नर भक्षी को भी शांत कर दिया। आप एक देवी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे क्षमा कर दें। ऐसा ना कहे माँ साहब, मैं तो अपने गिरधर की छांव में रहती हूँ। मुझे कैसा दुख, मैं तो सुखी हूँ। आप चिंता ना करें माँ साहब। मेरे बड़े भाग्य भाई साहब।
रुक जाइए, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये विष से भरा कटोरा है। विष? हाँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मैं कौन होती हूँ किसी को क्षमा करने वाली? नहीं, मैं आपको ये पीने नहीं दूंगी। पर उदा बाई साहब, इसे तो मैंने अभी अभी तुलसी दल के साथ अपने प्रभु को अर्पण किया है। भाभी ये पर उदा बाई साहब, मेरा ये विश्वास है कि अब ये अमृत बन गया है। भाभी ये देह जला देगा। देह तो वैसे भी एक दिन जल जानी है, मिट्टी में मिल जानी है। इस देह से कैसा मोह? अगर इसे पीने से मेरी अगली सांस अंतिम सांस है तो अंतिम सही। मुझे अत्यंत भय लग रहा है। भय तो शंका से उत्पन्न होता है, और इस पात्र में तो सिर्फ केवल मेरा प्रेम है, मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरा प्रथम और परम सत्य है। इसे तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगी। भाभी, आपकी चारों दिशाओं में प्रीति और कीर्ति बढ़ती देख मुझे अत्यंत ईर्ष्या होती थी, परंतु अब तो मेरे जीवन में यह शिक्षा देने आई थी। काश मैंने आपकी भावनाओं को समझा होता। काश आपकी भक्ति का सम्मान किया होता। मुझे क्षमा कर दे। मीरा का मन महल से उब गया था, मानो अपने गिरधर से कह रही थी, रात दिन पुकारती थक गई ये रूह। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखकर आज्ञा दी और वृंदावन चली गई, अपने प्राण प्रीतम के घर, उनके धाम। पुकारती द्वारका चली आई, हर क्षण साधना और सत्संग में लीन रहती। इधर मेवाड़ आपदाओं से ग्रस्त था, भूख और महामारी से प्रजाजन दुखी थी। उन्हें अपनी गलतियों की माफी मांगनी थी मीरा से।
सो राजपुरोहित को साथ ले आए। बार बार आग्रह कर रहे थे, याचना कर रहे थे। मीराबाई साहब, मीराबाई साहब, मीराबाई साहब, प्रणाम। आपका मेवाड़, आपका ससुराल संकटों से घिर गया है। हम सब ने आपका और आपकी भक्ति का घोर अपराध किया है। क्षमा करें, दया करें और हमें सनाथ करें। वर्षों से प्रतीक्षा और प्रार्थना के पश्चात पुकारते पुकारते अभी तो पहुंची हूँ अपने ससुराल, अपने प्राण प्रीतम के धाम। और मुझे कैसा दुख, मेरा कैसा अपमान। मैं तो एक दासी हूँ जो अपने चुने हुए भक्ति मार्ग पर चल रही है अपने प्रभु तक पहुँचने के लिए। आप ज्ञानी हैं, जानते ही हैं कि मनुष्य पर विपत्ति तो उसके स्वयं के कर्मों का फल है। पुत्री, हुकुम के अपराध को क्षमा करें और हमारे साथ चलें। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो अनुमति दें। मैं एक बार अपने गिरधर से पूछ लूं। मेरे गिरधर की स्वीकृति और आज्ञा से ही तो मेरी सांसें चलती हैं। Hariom. Good evening, everyone. On behalf of Chinmaya Mission Study Group, I would like to extend my heartfelt gratitude to our sponsors and all of you for being here this evening. Without you, this would not be possible. I would like a big round of applause for all our participants. I would like to take a moment to introduce them and all the people who have made this show a big success. A big thank you to all the technicians who have helped us throughout. Techman Godaida, lights Aji Natyu, musicians Pinduda and his crew, music execution
round of applause for our very own daughters and daughters-in-law who stood by gracefully and did the dance for us. They are Devashri Himatsingha, Khushbu Chandak, Komal Tushniyal, Prachi Tushniyal, and Smriti Jhunjhunwala. We would also like to introduce the other participants. So first and foremost, since I have been posting a lot of quizzes, I would like to ask one question. Any guesses who sang Chum 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 Cha Na 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 Na? Amira, a big round of applause for her. That's fine. And now, Shri Krishna, Indira Ankalsarya, Sutradhar, Manju Gupta, Rao Dudaji, Rachna Bhagat, Taisa, you all know her, Vandana Bhagat, Ratan Singh Ji, Nandini Daga, myself, Jhalibai, Masa, Sant Nivritti Nath Ji, Aruna Jhunjhunwala, Lalita Sakhi, Anuradha Bagadia, Sant Raidas Ji, Kiran Jhunjhunwala, the first Bhojraj Ji, whom we say Bhojraj Ji 1, is Devyani Singh. Bhojraj Ji 2, any guesses again? Kavita Jhunjhunwala. Hardy Rani, the mother-in-law, Shalini Jalan. Uda Baisa, Meenakshi Tushniyal. Rana Vikramaditya Ji, again, Rachna Bhagat. Raj Purohit, Sangeeta Kejriwal. Father-in-law, Sarita Ruiya. Our very own first and foremost Meera, Amira Bhagat. The second Meera, Aditi Kejriwal, sorry. And the third Meera, Bharti Harlalka. Krishna's voiceover was given by Sahir Siddiq. Script written by Sahir Siddiq and Bharti Harlalka. Music, Manju Gupta. Choreographer, Oindrila Ghosh. Production, Vandana Bhagat and Sangeeta Kejriwal. Design and direction, Sahir Siddiq. आगे दो. I don't know how we would have carried on this show without these two there. One big round of applause. They have been super patient with us. And now we would like to conclude this evening by handing over a check of rupees 5 lakhs to Brahmachari Divakar ji for the mission which has been collected from today's proceeds and sponsors. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Hari Om. See, I'm overwhelmed with the performance
if we have dedication, if we have the zeal to do something good, what can happen? Today's program is the proof. They're all householders, students, they're not a single professional in this field. Yet out of their dedication, they enriched their perfection. So if there is that dedication, love and shraddha for our any sorts of work, we can reach at the highest level of perfection. And today's Dhamma performance shows us that. Thank you very much. Yes, आइए.